ગુજરાતના વિધાનસભાના ઇલેક્શન પહેલા ગુજરાતના લોકોની ઈચ્છા પ્રમાણેની અપેક્ષા પ્રમાણે એમના સૂચનો મેળવીને ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આગામી ઇલેક્શનમાં સંકલ્પ પત્ર રજૂ કરવાના આજના કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી જેપી નડ્ડા સાહેબ, ગુજરાતના આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી, અહીં ઉપસ્થિત સર્વે આગેવાનો, પત્રકાર મિત્રો, ઇલેક્ટ્રોનિક અને પ્રિન્ટ મીડિયાના સૌ ભાઈઓ અને બહેનો, આજે બંધારણ દિવસ છે. બંધારણ લોકતંત્રનો આત્મા છે. સાથે સાથે ભારતની એકતા અને વિકાસનો મૂળ આધાર છે. બંધારણ દિવસ પર ભારતીય બંધારણના શિલ્પી ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને હું નમન કરું છું. ભારતના આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે બંધારણે બતાવેલ માર્ગે ચાલી દેશના દરેક વર્ગના કલ્યાણ માટે કટિબદ્ધતા બતાવી છે અને પરિણામ પણ મેળવ્યા છે. આજના બંધારણના દિવસે ગુજરાતના સંકલ્પપત્ર રજૂ કરતા હું આનંદની લાગણી પણ અનુભવું છું. આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી એક એવી પાર્ટી છે કે જે લોકોની અપેક્ષાઓને પૂર્ણ કરવા માટે કટિબદ્ધ છે. એમના આજ દિન સુધીના સંકલ્પ પત્રો, એ સંકલ્પ પત્રમાં આપેલા વચનો એ લગભગ બધા જ પૂર્ણ કર્યા છે. મેં 2007થી બધા જ સંકલ્પ પત્રનો અભ્યાસ કર્યો તો બધા જ વચનો પૂર્ણ કર્યા છે અને કેટલાક પાઇપલાઇનમાં છે. અને એ રીતે વચનો આપવા, સંકલ્પબદ્ધ થવું અને સંકલ્પ પૂર્ણ કરવા એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓની, એના આગેવાનોની એક ખાસિયત પણ રહી છે. આજે જ્યારે આ સંકલ્પ પત્ર બનાવતા પહેલા 5 નવેમ્બરથી 15 નવેમ્બર ખાસ અભિયાન એક અમલી કર્યું હતું. એમાં 12,000 સૂચન પેટી રાજ્યભરમાં મૂકી હતી. મિસ કોલ થકી સૂચનો મેળવાયા. એના માટે ખાસ નંબર આપવામાં આવ્યો હતો. agresargujarat.com વેબસાઇટનું માધ્યમ પણ આપ્યું હતું. વોટ્સઅપ નંબર પણ જનતા સમક્ષ મૂક્યો હતો. કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીઓ જુદા જુદા જિલ્લામાં સૂચનો મેળવવા માટે ખાસ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. યુવા મોરચા દ્વારા કોલેજ, વિશ્વવિદ્યાલય આ માટેના અલગ અલગ કાર્યક્રમો દ્વારા યુવાનોનું પણ એમાં સૂચનો અને એમનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ આમાં લાવવામાં આવ્યું હતું. રાજ્યભરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલયો, જાહેર સ્થાનો પર ખાસ સૂચન પેટી મૂકવામાં આવી હતી. ભાજપના જુદા જુદા સેલે જેપી નડ્ડા સાહેબ, ગુજરાતની જનતા પાર્ટીની અમારી જવાબદારી, પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરતું સંકલ્પ પત્ર 2022 આપ સૌને સમક્ષ રજૂ કરશે. ગુજરાતના સૌ ભાઈ બહેનો, ગુજરાતની શાંતિ, સમૃદ્ધિ, ભવ્યતા, દિવ્યતા અને વિકાસની ગતિને વધારે ગતિમાન કરવા કમળના નિશાનને પુનઃ સમર્થન આપશે તેવી આશા વ્યક્ત કરીશું. આપ સૌના સાથ અને સહકારની અપેક્ષા સાથે હું આદરણીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી જેપી નડ્ડા સાહેબને વિનંતી કરું છું કે સંકલ્પ પત્રનું વિમોચન કરે. ધન્યવાદ. જય ગુજરાત. આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રીની સંબોધન પછી આપણે આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રીને વિનંતી કરું. नहीं होगा. भारत माता की भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश द्वारा आयोजित गुजरात संकल्प पत्र 2022 लॉन्चिंग प्रसंगे अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित काश्मीर कन्याकुमारी
અને કચ્છથી કટક સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વ્યાપ પદાર્થ વિશ્વની સૌથી મોટી રાજકીય પાર્ટીના યશસ્વી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જેપી નડ્ડાજી, પ્રદેશના યશસ્વી અધ્યક્ષ અને નવસારીના સાંસદ શ્રી સી.આર. પાટીલજી, સંગઠનના સૌ પદાધિકારીશ્રીઓ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, આપ સૌને નમસ્કાર. આપ સૌને સંવિધાન દિવસની શુભકામનાઓ પાઠવું છું. 24મી નવેમ્બર 1944ના રોજ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજી દ્વારા બંધારણ સભા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલું અને તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ દ્વારા અંગીકૃત કરવામાં સંવિધાન આપ્યું. આજે ગુજરાતના સૌ ભાઈઓ બહેનો સમક્ષ અંકલેશ્વર ગુજરાત સંકલ્પ પત્ર 2022 માનનીય જેપી નડ્ડાજી, સી.આર. પાટીલજી અને સંકલ્પ પત્ર સમિતિના સૌ સભ્યોની ઉપસ્થિતિમાં પ્રજા સમક્ષ રજૂ થઈ રહ્યું છે. ગુજરાતની જનતાએ ભાજપને અપ્રતિમ સ્નેહ, સહકાર અને સમર્થન આપ્યા છે અને 2 દાયકાથી સતત આપતી રહી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આ સંકલ્પ પત્ર એ બીજા લોકોની જેમ માત્ર ચૂંટણીલક્ષી વચનો આપવાનું ઘોષણાપત્ર નથી. આવનાર 5 વર્ષમાં ગુજરાતની સુદીર્ઘ, સુઆયોજિત વૈશ્વિક વિકાસ યાત્રાનો દસ્તાવેજ છે. આપણે આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં પાછલા 2 દાયકાથી જનસેવાને જ સાધના બનાવી ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે વિકાસ કર્યો છે. હવે એ વિકાસ યાત્રાને વધુ વેગવાન બનાવી છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ જે સેચ્યુરેશનનો 100% લાભાર્થી સુધી પહોંચવાનો જે વિચાર આપ્યો છે તેને આવનાર દિવસોમાં ચરિતાર્થ કરવાનો રોડમેપ આ મેનિફેસ્ટોમાં છે. આઝાદીના 75 વર્ષ નિમિત્તે અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી કરી અને આપણે અમૃત કાળમાં પ્રવેશ્યા છે. આવનાર 25 વર્ષ પછી દેશ જ્યારે આઝાદીના શતાબ્દી મનાવતો છે ત્યારે ગુજરાત વિકાસમાં ક્યાં હશે એનો વિચાર કરીને વિકાસમાં દેશના રોલ મોડેલ બનેલું ગુજરાત આ અમૃતકાળમાં દુનિયાનું પણ રોલ મોડેલ બને તેવા નક્કર અને પરિણામલક્ષી આયોજન સાથે ભાજપા જનતા સમક્ષ આ મેનિફેસ્ટો લાવી છે. જે કહેવું તે કરવું અને જે કરી શકશે તેટલું જ કહેવું એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ભરોસાની સરકારની કાર્યપદ્ધતિ છે. એટલા માટે જ આ મેનિફેસ્ટોમાં જે કહ્યું છે તે જનતાના સહયોગથી અમે પાર પાડીશું તેવી જનતાને પણ ખાતરી આપીએ છીએ. ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે પંડિત દીનદયાળ, શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી અને અટલ જેવા દિગ્ગજ વરિષ્ઠ વડીલોની પ્રેરણા છે. पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं, सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को ये साथ में आगे ही बढ़ते जाना, ये सद्भावना है. नरेंद्र भाई આપેલી વિકાસની રાજનીતિ અને સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયત્નો કાર્ય મંત્ર પણ છે. આપણા સૌના હિતચિંતક આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, प्रदेश प्रमुख श्री आर पाटिल जी और मैनिफेस्टो तैयार કરવામાં સતત માર્ગદર્શન મળ્યું છે. આપણે સૌ ગૌરવ લઈ શકીએ કે ગુજરાત આજે સમગ્ર દેશનું ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે. રાજ્યમાં એવું કોઈ ક્ષેત્ર નથી જ્યાં ભાજપની સરકારે સેવા અને સુવિધા ન પહોંચાડી. ગુજરાત આજે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના પરિશ્રમ અને માર્ગદર્શનને પરિણામે આજે ગુજરાત ગવર્નન્સ અને ડેવલપમેન્ટના તમામ માપદંડોમાં રાષ્ટ્રમાં અગ્રેસર છે. સમગ્ર દેશમાં રોજગારી આપવામાં ગુજરાત નંબર 1 છે તો ગુજરાત સમગ્ર સ્ટાર્ટઅપ અત્યાર સુધી પ્રથમ નંબરે રહ્યું છે. સમગ્ર દેશમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શનમાં ગુજરાત નંબર 1 તો સમગ્ર દેશની કુલ વિકાસમાં ગુજરાત નંબર 1. ગુજરાત ગુડ ગવર્નન્સ ઇન્ડેક્સમાં સમગ્ર દેશમાં નંબર 1. લીડ લોજિસ્ટિક ઇઝ એક્રોસ ડિફરન્ટ સ્ટેટ્સમાં ગુજરાત નંબર 1. ક્લાઇમેટ ચેન્જ
એનર્જી ઇન્ડેક્સમાં ગુજરાત નંબર 1, તો કોમ્પોઝિટ મેનેજમેન્ટ ઇન્ડેક્સમાં ગુજરાત નંબર 1, સમગ્ર દેશમાં વ્યક્તિ દીઠ વીજ વપરાશમાં ગુજરાત નંબર 1, ફૂડ સેફ્ટી ઇન્ડેક્સમાં પણ ગુજરાત નંબર 1. અગ્રેસર ગુજરાત સંકલ્પ પત્ર એ ગુજરાતને વધુ ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાની ભાજપાની કટિબદ્ધતા વ્યક્ત કરે છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વ હેઠળની ભાજપ સરકાર ગુજરાતીઓને પ્રત્યેક આશા અને આકાંક્ષાઓ પૂરી કરી છે. ગુજરાતમાં શાંતિ સલામતીની વાત હોય, નળથી જળ પહોંચાડવાની વાત હોય, 24 કલાક વીજળી આપવાની વાત હોય, स्वास्थ्य सेवाओं હોય, स्टार्टअपની વાત હોય, महिला सशक्तिकरणની વાત હોય, जल व्यवस्थापन હોય, दलित शोषित वंचितों उद्धार હોય, आदिवासी कल्याणની વાત હોય, ખેડૂતોના કલ્યાણની વાત હોય કે શિક્ષણ સુવિધા દરેક ક્ષેત્રે વિકાસ કરીને ગુજરાતે પોતાની આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે. આજે ગુજરાતમાં બનેલી જનકલ્યાણની નીતિ સમગ્ર દેશમાં લાગુ થાય છે અને અનેક રાજ્યો તેનો અભ્યાસ કરવા આવે છે. ત્યારે હવે આ સંકલ્પ પત્ર અભ્યાસનો એક વિષય બને એ વાત નિશ્ચિત છે. બદલેલી સરકારના બેવડા લાભ અને ડબલ સ્પીડથી ગુજરાતનો દસે દિશાએ વિકાસ આ ભાજપ જ કરશે. ગુજરાતની જનતા જનાર્દન અમને ફરી એકવાર જનસેવાનું દાયિત્વ નિભાવવાનો અવસર આપશે એવા પાકા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગણેશ. ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો. હવે હું આદરણીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જેપી નડ્ડા સાહેબ, આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને સી આર પાટીલ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે સંકલ્પ પત્ર 2022 ને ગુજરાતની જનતાની સમક્ષ મૂકે. બીજો તાલીમના ગડગડાટ સાથે આપણે એને વધારી લઉં છું. આત્મનિર્ભરતા અને સશક્તિકરણનો સંકલ્પ પત્ર છે. આ શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સલામતીનો સંકલ્પ પત્ર છે. હું આદરણીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જેપી નડ્ડા સાહેબને વિનંતી કરું કે મેનિફેસ્ટો સંકલ્પ પત્ર 2022 વિશે આપણને વિસ્તૃત જાણકારી. आज के इस संकल्प पत्र के विमोचन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र पटेल जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री सी आर पाटिल जी, जो संसद में मेरे साथी भी हैं, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ मीडिया के पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि इस संकल्प पत्र के विमोचन पर आप सब लोगों के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है. और आज 26 नवंबर है, जो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं. 1949 में यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान को एडॉप्ट किया था. ऐसे संविधान के प्रति हम समर्पित लोग आज के दिन संविधान दिवस मनाकर उससे प्रेरणा लेकर के देश की सेवा में हम जुटते हैं. तो ऐसे संविधान दिवस पर पत्रकार बंधुओं को भी मेरी शुभकामनाएं और बधाई. हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है
कि संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और उस पर चलना और उसको संभाल के रखना यह हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे संविधान दिवस पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक संकल्प पत्र का सवाल है, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने एक सार्वजनिक जीवन में अपनी राजनीति का प्रारंभ गुजरात की धरती से किया, उस गुजरात के बारे में हमारा संकल्प सदा रहा है भव्य गुजरात, वैभवशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात। और इसी मंत्र को लेकर हम सब लोग चले और यह एक तरीके के पड़ाव से नई यात्रा प्रारंभ करने का अवसर है। और जब मैं गुजरात की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये संतों की भूमि है, ये शूरवीरों की भूमि है, ये सामाजिक परिवर्तन लाने वालों की भूमि है, ये सांस्कृतिक चेतना लाने वालों की भूमि है और राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक दिशा देने वाली भूमि है। और जब मैं कहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से दिशा देने वाली भूमि है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, मैं शब्दों में सिर्फ बयान नहीं करता। इतिहास इस बात का गवाह है कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी में अपना योगदान किया, उनका संबंध इसी पवित्र गुजरात की धरती से था। सरदार पटेल जी ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने सैकड़ों राज्य रजवाड़ों को जोड़ करके ये भारत एक महान देश बनाया, उनका संबंध भी गुजरात की धरती से रहा है। और जो अमृत काल में नया भारत का संकल्प लेकर विकासवाद की राजनीति, परिवारवाद को धक्का दिखाते हुए राष्ट्रवाद और विकासवाद को आगे बढ़ाने की दिशा गुजरात में भी और देश में भी है, तो वो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी है, उनका भी संबंध गुजरात से। इसलिए गुजरात विकास की गंगोत्री, राजनीति के परिवर्तन की गंगोत्री, और उस गंगोत्री में जब हम विकास की बात करते हैं तो हम नए संकल्प के साथ अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का बात करते हैं। इसलिए भव्य गुजरात, भविष्यशाली गुजरात, अग्रसर गुजरात ये शब्द नहीं है, इसके साथ हम जीते हैं और इसके साथ हम जीत करके ही आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर एक बात और भी कहना चाहता हूं। अभी हमारे भूपेंद्र भाई ने और सीआर पाटिल ने आपके सामने भूमिका रखी कि कैसे ये संकल्प पत्र बना है, और भूपेंद्र भाई ने आपके सामने गुजरात कैसे नंबर 1 है इसकी बात उन्होंने आपके सामने की, तो मैं गुजराती में समझ पाया। लेकिन मैं इसके साथ साथ और भी बात कहना चाहता हूं कि यह जो संकल्प पत्र हमारा है ये महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है, और देश और दुनिया भी और गुजरात के पत्रकार भी इसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं देखते, वो जानते हैं कि जो कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत है तो भारतीय। इसलिए जब हम आपको आगे की चर्चा करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 48 लाख हमारे किसान भाइयों को ब्याज मुक्त कर देने का अगर संकल्प पूरा किया है तो वो गुजरात की स्थिति में भूपेंद्र पटेल जी की सरकार है। अगर पानी, सिंचाई, अगर 13 लाख परिवार किसानों की भूमि को सिंचित किया है इरिगेशन के, सिंचाई के नेटवर्क को बढ़ा करके, तो वो भूपेंद्र पटेल जी की गुजरात की सरकार है। लगभग 21 लाख हेक्टेयर एरिया पिछले 5 सालों में इरिगेशन से कवर हुई। सौनी योजना में 1126 किलोमीटर की 4 पाइपलाइनों की नेटवर्क बिछा करके 10 लाख एकड़ की भूमि को सिंचित किया है। देखिए मैं आंकड़े रख रहा हूं आपके साथ, ये बताता है कि वी आर ए रिस्पॉन्सिव एंड ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, एंड दैट इज हाउ वी से। अगर मैं एजुकेशन की
के तहत 1609 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के इंटरैक्टिव क्लासरूम को स्थापित किया है गुजरात की सरकार। अगर मैं कहूं एक्सपेंशन की बात, तो नई यूनिवर्सिटीज 19 नई यूनिवर्सिटी बनी है गुजरात। अगर मैं बात करूं पॉलिसी ड्रिवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, औद्योगिक विकास की, अगर मैं बात करूं नीतिगत तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो आपको जानकर के खुशी होगी, जिसको गुजराती में हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, 37% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुजरात की धरती पर आ रहा है और अगला डेस्टिनेशन मैक्सिमम अगर मिलेगा तो वो गुजरात है। उसी तरीके से जो इंडेक्स है प्रिपेयर्डनेस की, उसमें गुजरात नंबर 1 है। एक्सपोर्ट पॉलिसी में गुजरात नंबर 1 है। कोऑपरेटिव पॉलिसी नई बनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनी है, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी बनी है। ये सब कुछ यही हुआ है। और एक बात और भी कहूंगा कि ह्यूमन डिग्निटी के लिए अगर काम हुआ है, मानव की इज्जत के दृष्टि से भी अगर काम हुआ है, तो इज्जत घर बनाने का काम 33-33.5 लाख इज्जत घर बना करके महिलाओं को इज्जत देने का काम हुआ। तो गुजरात में हम देखिए नए आयाम साबित कर रहे हैं। 100% पाइप, हर घर जल, हर घर नल, इसको गुजरात ने करके दिया है। इसके लिए भी मैं बधाई दे रहा हूं। लेकिन मैं पत्रकार मित्रों से एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि इसकी देखिए हमको समझना होगा कहने वाले और करने वालों का अंतर क्या है। इससे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो कहा था वो किया है, लेकिन जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये हमारी बात है। हमने कब कहा था कि आपको ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट राजकोट को देंगे, लेकिन हमने दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और आज वो तैयार होकर के अब वो समर्पित होने वाला है। हमने कब कहा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर जामनगर में खोलेंगे। और एक बात सुन लीजिए, दुनिया का, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो वो भी गुजरात की धरती पर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए आगे बढ़ रहा है। तो हमने कब कहा था कि हम ये खोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक तो इस कॉन्सेप्ट को, जब हम कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, जब हम कहते हैं कि सारे हेल्थ केयर को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत है, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर को आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो उसको, इस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकॉग्नाइज किया और वह जामनगर में खुल रहा है। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। हमने कभी कहा था कि एम्स हम राजकोट में खोलेंगे, लेकिन 1100 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौराष्ट्र की धरती पर आज तैयार हो रहा है और वह भी समर्पित हो जाएगा। ओपीडी शुरू हो गई है, कुछ समय में आईपीडी भी शुरू हो जाएगी। अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए। उसी तरीके से ये कब कहा था कि C-295 एयरक्राफ्ट गुजरात की धरती पर बनेगी, लेकिन अब वो गुजरात की धरती पर बनने की वडोदरा में उसकी तैयारी हो रही है। बल्क ड्रग पार्क, देखिए वैसे ही फार्मास्यूटिकल्स में अहमदाबाद दुनिया में अपना स्थान रखता है, लेकिन जब जम्मू साहब में ये बल्क ड्रग पार्क बनेगा और 2,500 करोड़ रुपए का की लागत से बनेगा और 30 से 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, तो दुनिया के नक्शे में ड्रग में गुजरात और जम्मू साहब खड़ा हो जाएगा। यह भी हम आपको बताएंगे। उसी तरीके से एम्बुलेंसर का फेज 1 का एयरपोर्ट वह भी तैयार हो रहा है। तो जो कहा था वो भी किया, जो नहीं कहा था वो भी कर दिया, और इसलिए हमारी बात में ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे हुए शब्द को धरती पर उतारने का काम हमारी गुजरात की सरकार करती है, भारत की सरकार करती है, और पार्टी पूरी ताकत से उसके साथ होती है। यह बात हम बोलते हैं। इसलिए आज जब हम आपके सामने संकल्प पत्र लेकर आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं, तो मैं अपने साथियों से एक बात और कह देना चाहता हूँ। बहुत से राजनीतिक दल है, बड़े बड़े घोषणाएं कर रही है,
ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आंकड़ों को पढ़ते हैं, जरूरतमंद को जानते हैं, जरूरतमंद की कमी को पहचानते हैं और उसको ताकत देने का काम करते हैं। ये हमारा संकल्प होता है। इसीलिए मैं आपके पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा, ये जो दस्तावेज है ये सामाजिक आर्थिक पूरी तैयारी करने के बाद ये ब्लूप्रिंट है और हम जानते हैं कि कहां कमी है, किस कमी को हमको कैसे पूरा करना है और उसी को हम अपना संकल्प मानते हैं। हम आपके सामने कुछ संकल्प रखेंगे, बाद में कुछ हम महिलाओं के बारे में भी रखेंगे और कुछ हम अपने आदिवासी भाइयों के बारे में भी रखेंगे। जहां तक हम किसानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का पहला संकल्प है कि हम 10,000 करोड़ रुपए गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत हम खेतूत मंडी, मॉडर्न एपीएमसी, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन्स, वेयर हाउसेस और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, यानी किसानों के दृष्टि से उनकी मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले। हमारा दूसरा संकल्प है कि हम 25,000 करोड़ रुपए खर्च करके इरिगेशन की फैसिलिटी को, सिंचाई की फैसिलिटी को सुजलाम सुफलाम और सौनी योजना के तहत हम लगभग इसको आगे बढ़ाने में पूरे का पूरा योगदान करेंगे। इसी के साथ साथ हम साउथ गुजरात में और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क खड़ा करेंगे और उसके दृष्टि से हम एक बृहद योजना बना करके 2 सी फूड पार्क, एक सौराष्ट्र में और एक साउथ गुजरात में हम स्थापित करेंगे। इसी के साथ साथ जिसमें ये फर्स्ट ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा और इसी के साथ साथ मछली मारने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो हमने किसानों की चिंता की, इरिगेशन की चिंता की और हमने ब्लू इकोनॉमी की चिंता की और उसी के तरीके से हमारे जो सी के किनारे रहने वाले हमारे मछुआरे भाई हैं उनकी हमने विशेष योजना के तहत चिंता की। यहां मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, हम ही हैं जिन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। ये हमारी सरकार है जो मुख्यमंत्री अमृतम योजना के तहत जो बचे हुए लोग हैं उनको हेल्थ कवरेज दिया है और अब पार्टी ये निर्णय करती है कि आयुष्मान भारत के तहत जो 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है वह नीड बेस्ड 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर है। मुख्यमंत्री के हमारे फ्री डायग्नोस्टिक स्कीम के तहत 110 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया जाएगा और यह कॉर्पस मुफ्त में गरीब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हर किस्म के डायग्नोस्टिक्स को मुफ्त करेगा, इसकी व्यवस्था। इसी तरीके से हम 10,000 करोड़ रुपए महाराजा श्री भगवत सिंह स्वास्थ्य कोष के तहत रखेंगे और इसके तहत हम 3 सिविल मेडिसिटीज का निर्माण करेंगे, 3 सिविल मेडिसिटीज बनेंगी। उसी तरीके से 2 हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लेवल का स्टेट हॉस्पिटल, स्टेट ऑफ आर्ट हम डेवलप करेंगे और उसी तरीके से सीएचसी और पीएचसी को हम अपग्रेडेशन करेंगे। ये हमने स्वास्थ्य की चिंता की। उसी तरीके से शिक्षा के दृष्टि से 20,000 हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए रखा जाएगा और अगले 5 सालों में उनको स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। उसी तरीके से 4 गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तर्ज पर। तो स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे जो ऑल इंडिया
फैमिली कार्ड देंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स को एकीकृत करेगा और एक ही कार्ड के माध्यम से डीबीटी से सारे के सारे स्टेट के बेनिफिट्स उसको उसी फैमिली कार्ड से मिल जाएगा। इसकी व्यवस्था 1 लीटर सब्सिडाइज्ड एडिबल ऑयल 4 times a year और 1 kg सब्सिडाइज्ड चना पर मंथ, यह भी हम देने का काम करेंगे ताकि हमारे न्यूट्रिशन वैल्यूज को हम ठीक से रख सकें। हम एक श्रमिक क्रेडिट कार्ड बनाएंगे और ये श्रमिक क्रेडिट कार्ड हमारे मजदूर भाइयों को मिलेगा और इस कार्ड के माध्यम से कोलैटरल फ्री, बिना इंटरेस्ट के और बिना किसी उसको हम 2 लाख रुपए का लोन देंगे ताकि वो अपने उसी तरीके से एक समय का इंसेंटिव हम जो ओबीसी के बच्चे हैं, जो एससी समुदाय से जुड़े हुए बच्चे हैं, एसटी से जुड़े हुए बच्चे हैं, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए बच्चे, अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए बच्चे और आर्थिक रूप से जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, ऐसे बच्चों को एक बार इंसेंटिव देने के लिए अगर उनका एडमिशन किसी टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट में होता है तो उसकी पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए उसकी शिक्षा की। उसी तरीके से जो हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस कमेटी का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे। इसको ये जो प्रदेश में, देश में रेडिकल विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ एंटी रेडिकलिज्म सेल बनाया जाएगा जो आइडेंटिफाई करेगा यानी चिन्हित करेगा और एलिमिनेट करेगा जो उससे उठने वाली थ्रेट होंगे, जो चुनौतियां होंगी, उनसे उठने वाली चुनौतियों को एलिमिनेट भी करेगा और जो स्लीपर सेल्स है, जो स्लीपर सेल्स रेडिकलिज्म को एक तरीके से जो एक अति सोच पे लेकर के चलने वाले लोग हैं, उनके और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो एंटी इंडिया फोर्सेस है, भारत विरोधी सर्विसेज, भारत विरोधी विचार है, उनको एंटी रेडिकलिज्म सेल सुनिश्चित करेगा कि यह समाप्त हो। इसकी हम तैयारी। उसी तरीके से जो एक कानून बनाया जाएगा जो गुजरात में डैमेजेस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, उसकी रिकवरी करने के लिए प्रॉपर्टीज एक्ट बनाया जाएगा जो रिकवर करेगा डैमेज डन टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स। सामाजिक विरोधी गतिविधि करने वाले लोग जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कानून बनाया। गुजरात को आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर गुजरात होने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि हम गुजरात की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाएंगे एफडीआई के डेस्टिनेशन में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम बनाने वाले हैं, हम लाने वाले हैं और उसका ये नंबर 1 सेंटर बनेगा। एक अपने आप में पहला प्रयोग गुजरात पर होगा कि हम गुजरात को, सारे गुजरात को 4 लेन 6 लेन की सड़क से सारे का सारे जो इसका बॉर्डर है उसकी उस पर एक सड़क बनाएंगे, परिक्रमा, जिसका नाम होगा परिक्रमा पथ। और यह परिक्रमा पथ साउथ ईस्टर्न यानी दक्षिण पूर्वी हिस्से से पेरिफेरल हाईवे ऊपर तक बनेगा और नीचे से लेकर के ऊपर ईस्टर्न साइड से आएगा
मित्रों, ये एक देवभूमि द्वारका कॉरिडोर भी इस्टैब्लिश किया गया है। द्वारका में वो भारत का स्पिरिचुअल सेंटर बने, इस बात के लिए विशेष प्रयोजन किया गया है। वहां श्री कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी की बहुत बड़ी मूर्ति भी बनेगी। 3D गीता का बारे में हमको जानकारी 3 डायमेंशनल तरीके से मिल सके, इसका मोस्ट मॉडर्न एग्जिबिट करने का भी प्रयास वहां पर होगा। और इसके साथ साथ एक गैलरी भी बनेगी, जिस गैलरी में जो द्वारका की ग्लोरी थी, जो गौरव था द्वारका का, वह दुनिया को दिखाया जाएगा। इस तरीके से मित्रों, यह मैंने आपके सामने जनरल जो भव्य गुजरात की तस्वीर है, आर्थिक, किसान, मजदूर, हमारा भाई, हमारा स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी मैंने चर्चा की। हमारा मुख्य ध्यान महिलाओं पर भी है। वो हमारे समाज का प्रमुख, समाज को आगे बढ़ाने में महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा आयाम है। और इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हर महिला को यूजी से पीजी तक देने की व्यवस्था की जाए। केजी से पीजी तक, किंडरगार्टन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक उसकी व्यवस्था की जाए। उसी तरीके से बहनों के पढ़ने के लिए 9 क्लास से 12वीं क्लास की बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल की व्यवस्था की जाए। और उसी तरीके से बहनों के लिए अगले 5 साल में 1 लाख गवर्नमेंट जॉब देने की भी तैयारी है। श्रद्धा मेहता योजना के तहत, शारदा मेहता योजना के तहत फ्री ई स्कूटर्स मेरिटोरियस बहनों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनको दिया जाएगा। बहाली दिकरी योजना के तहत आर्थिक सहायता 1,50,000 की दी जाएगी। और उसी के साथ साथ मिशन मंगलम के तहत जो सेट नंबर 2 होगा मिशन मंगलम, उसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह, उनके विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपए का कॉर्पस रखा जाएगा, ताकि उससे बढ़ा। हमारी सीनियर सिटीजन बहनों के लिए फ्री बस ट्रैवल की व्यवस्था की जाएगी और उसकी आदेश दिए जाएंगे। और जो हमारे अग्निवीर, अग्निपथ के जो हमारी बहनें आएंगी, उनको वन टाइम ग्रांट 50,000 रुपए का दिया जाएगा, ताकि वो अपने आप को सक्रिय कर सकें। उसी तरीके से हमारे जो आदिवासी भाई हैं, उनके लिए 1 लाख करोड़ रुपए वन बंधु कल्याण योजना के तहत सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमारे आदिवासी भाइयों के लिए रखा जाएगा। बिरसा मुंडा आदि जाति समृद्धि कॉरिडोर अंबाजी से लेकर के उमेर ग्राम तक ये बनेगी, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक ट्राइबल, जो सारे ट्राइबल जिलों को कनेक्ट करेगा, और उसके लिए एक कॉरिडोर बनेगा, उसकी तैयारी करेंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर के लिए 8 मेडिकल कॉलेजेस, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में पैरा मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस भी खोले जाएंगे। 8 गुजरात में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से ट्राइबल बेल्टों में खोले जाएंगे, ताकि ट्राइबल में इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सके, इसकी कोशिश होगी। 25 बिरसा मुंडा ज्ञान शक्ति रेजिडेंशियल स्कूल बनेंगे, जिसमें 75,000 हमारे मेरिटोरियस आदिवासी भाई पढ़ेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। हमारे आदिवासी भाइयों के लिए राशन की डिलीवरी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की डिलीवरी, इसके लिए मोबाइल डिलीवरी की सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, ताकि उनको राशन
उनके गांव तक पहुंचाया जा सके। और उसी तरीके से 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे आदिवासी गांव में पूरा का पूरा 2023-24 तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मित्रों, मैंने आपके सामने और पत्रकार बंधुओं के सामने ड्यू डिलिजेंस के साथ मैंने हर चीज के बारे में आपको आंकड़ों के साथ और पैसों के साथ बताया है। किसमें 2000 करोड़ रुपए लगने हैं, किसमें 10,000 करोड़ रुपए लगने हैं, किसमें 2,500 करोड़ लगने हैं, किसमें 25,000 करोड़ रुपए लगने हैं। यानी ये जवानी जमा खर्च नहीं है। अर्थ को देखकर, कोष को देखकर, सामर्थ को देखकर और जरूरतमंद को देखकर उसकी गहराई को पहुंचाकर हमने ये संकल्प किया। इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में प्रदेश में प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करते हुए आगे बढ़ रही है। और यह संकल्प पत्र हमें संकल्पित करता है कि अगले 5 साल हम इन लक्ष्यों को हासिल करके गुजरात को एक नए आयाम पर ले जाएंगे। इस बात का संकल्प लेकर के आपने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है। मैंने प्रयास किया कि आप तक मैं मुख्य बिंदु पहुंचा सकूं और इसके बाद आप इन पर जब कोई प्रश्न करेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि उनका जवाब